You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. Hello friends, welcome to Civis GS Academy. Today we will study water, which is chapter 5 of class 7th NCERT Geography. This chapter is very important for UPSC, UPPCS, SSC, CTAT and other competitive exams. In this video, we will study water cycle, major water bodies of the earth, distribution of water bodies, ocean circulation, that is waves, tides and currents. What is water cycle? The sun heats causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms cloud. From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. This process by which water continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle. हो सकता है आज जो आप पानी पी रहे हो पहले कभी वो अमेजन रिवर में बहता हो या हो सकता है वो पैसिफिक ओशन का पार्ट हो, बट ड्यू टू वाटर साइकिल वो पानी आपके पास पहुंच चुका है. कैसे? पानी गर्म होता है, गर्म होकर भाप बनता है और भाप बनने के बाद जब आसमान में जाता है तो बादल बन के कंडेंस हो जाता है. वहाँ पे कंडेंस होने के बाद बादल बनता है और फिर बारिश होती है, फिर वो पानी ज़मीन पे आता है. ओके, so this way this whole circulation of water complete and it is called water cycle. Our earth is like a terrarium. What is terrarium? It is artificial enclosure or for keeping small house plants. एक छोटा सा ग्लास का पॉट होता है जो घर में हम अक्सर हाउस प्लांट्स को रखने के लिए यूज़ करते हैं. हमारी पृथ्वी एक टेरेरियम की तरह है. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago. हो सकता है जो पानी हम आज अपने खेतों में यूज़ कर रहे हो सिंचाई के लिए पहले कभी वो अमेजन रिवर में बहता हो. ओके, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, ponds, springs and glaciers. Note this point, it is important from examination point of view. The major source of water are rivers, ponds, springs and glaciers. The ocean bodies and seas contains salty water. Okay, ocean body और sea में salty water होता है. The water of the ocean is salty or saline as it contains large amount of dissolved salt. क्यों salty होता है? क्योंकि इसमें large amount of dissolved salts होते हैं. मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन टेबल सॉल्ट. मैक्सिमम क्या होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड होता है जो कि हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं एज ए कॉमन टेबल सॉल्ट दैट वी यू ईट. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. 3/4 द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. हाउ मच? 3/4. ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज. Now see the percentage distribution of the water. In ocean it is 97.3, means maximum water जो है वो ocean में ही है, but it is not suitable for use. Why? Just we have discussed, because it is saline in nature. It is saline water. Now see the percentage of fresh water. Fresh water is only 2.7%. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. What is the percentage of fresh water on the earth? जैसे वो कितना है? 2.7%. सी कितना कम है ये. नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स 2%, ग्राउंड वाटर 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स 0.009% एंड इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009%. एटमॉस्फेयर में 0.0019%, इन रिवर्स 0.001%. ओके, सो व्हाट इज द परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर? इट इज़ 2.7%. Now see some water bodies in this figure. Okay, see here it is Pacific Ocean. This is Pacific Ocean, the biggest ocean of the earth. Now this is Atlantic Ocean. Here it is North Atlantic Ocean. Here it is South Atlantic Ocean. The shape of this Atlantic Ocean is S shape. See this. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस ओशन का शेप एस शेप में होता है. It is Atlantic Ocean. Now here it is Arctic Ocean in the upper part, Arctic Ocean, and in the lower part here it is Southern Ocean. इसको पहले अंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता था लेकिन बाद में इसका नाम सदर्न ओशन हो गया.
इसको जनरली हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं. हियर इट इज इंडियन ओशन एंड हियर अगेन पैसिफिक ओशन. ओके, नाउ सी द इंपॉर्टेंट लेक्स. हियर इट इज ग्रेट बियर लेक इन कैनेडा, ग्रेट स्लेव लेक, it is also in Canada. Lake Winnipeg, it is in Canada. Now Lake Superior, here Lake Superior, Lake Huron. Okay, here is Salt Lake, and this is Mississippi River. Now here it is Caribbean Sea. See, this is Caribbean Sea. Caribbean means जहाँ वेस्ट इंडीज़ वगैरह है. वेस्ट इंडीज़ आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट मतलब जो क्रिकेट टीम है जो, और दिस इज कैरिबियन सी. नाउ दिस इज अमेजन रिवर. सी, अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. इट इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ी रिवर है ये. बड़ी मीन्स इन कैचमेंट एरियाज का बहुत ज़्यादा है. ओके, नाउ इन अफ्रीका सी, दिस इज रिवर नाइजर. ओके, एंड इट इज कॉन्गो रिवर. कॉन्गो रिवर, इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दिस इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड विच कट्स इक्वेटर 2 times. ये इक्वेटर को 2 बार काटती है. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. इक्वेटर यहाँ से पास होती है और ये रिवर ऐसे काटती है, तो ये इक्वेटर को 2 बार कट करती है. ओके, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. दिस इज लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका. हियर ऑरेंज रिवर. नाउ सी, हियर इट इज ब्लैक सी, देन मेडिटेरियन सी, हियर इज कैस्पियन सी. ओके, कैस्पियन सी बिगेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड. Now here it is Hwango River. Here in India it is Ganga River. The Arabian Sea. Here it is Red Sea, Bay of Bengal, South China Sea. Now some interesting facts. See, salinity is the amount of salt in grams present in 100 gram of water. So what is salinity? It is amount of salt in grams present in 100 grams of water. Okay. 100 ग्राम पानी में जितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसी को हम सैलिनिटी कहते हैं. द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन इज 35 parts per 1000. दिस फैक्ट हैज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स. कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. व्हाट इज एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशंस? इट इज 35 parts per 1000. ओके, डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 grams per liter. डेड सी जो कि इजराइल में है, इसकी सैलिनिटी कितनी है? 340 grams per liter. It is one of the sea having highest salinity. Now swimmers can float in it because the increased salt content makes it dense. यहाँ पर स्विमिंग करना बड़ा आसान है डेड सी में. रीज़न क्या है? सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और डेंस वाटर में स्विमिंग करना ईजी रहता है. ईजियर वो है बिकॉज इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस. नाउ मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे. इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. वर्ल्ड वाटर डे मैचिंग में आ जाता है अक्सर ये. सो 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज. नाउ ओशन सर्कुलेशन. अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. इट इज नेवर स्टिल. ओशंस का पानी कभी रुका नहीं रहता, जैसे कि तालाब और झीलों में अक्सर रुका रहता है. ये हमेशा मूव करता रहता है और इसके मूवमेंट के अलग अलग रीजंस होते हैं. द मूवमेंट दैट ऑकर्स इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. इसके मूवमेंट को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. नाउ व्हाट इज वेव्स? वेव्स क्या होती हैं? When the water on the surface of the ocean rises and fall alternatively, they are called waves. जब भी कभी महासागरों में आपका पानी मतलब का लेवल उठता है और फिर गिरता है. ओके, द सरफेस ऑफ द ओशन rises and falls alternatively, they are called waves. Waves means लहरें. Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. लहरें आती क्यों हैं समुद्र में? लहरें आने का रीज़न होता है जब उसके ऊपर बहने वाली हवा उस पानी को स्क्रैप करती है. स्क्रैप मतलब उसको अपने साथ खींचती है, तभी इन वेव्स की उत्पत्ति होती है. वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस. द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज, द बिगर द वेव बिकम्स. ओके,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स, दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। कभी कभी तूफान के समय क्या होता है, हवा बहुत तेज बहती है समुद्र के ऊपर से, तो लहरें और ऊंची उठती हैं, और ये क्या करती है, समुद्र के किनारों पर जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती है ये वेव्स। एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. As a result, huge tidal waves called tsunami that may be high as 15 meter is formed. कभी कभी अर्थक्वेक या वॉल्केनिक eruption या अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से ओशन का जो पानी होता है वो काफ़ी ऊपर तक उठ जाता है, ठीक है। और ये ऊपर क्यों उठता है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव्स विच आर कॉल्ड सुनामी आर प्रोड्यूस्ड। इसी की वजह से यहाँ पर सुनामी प्रोड्यूस होती हैं, जब कभी समुद्र सरफेस में अर्थक्वेक आ जाता है या वॉल्केनिक eruption होता है या अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। सुनामी की जो स्पीड होती है इन वेव्स की वो कितनी होती है, मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। 2004 की सुनामी सबको याद होगी, कितना उसने डिस्ट्रक्शन किया था, लाखों लोग मारे थे इसमें। ओके, द इंदिरा पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, इसी सुनामी के बाद वो सबमर्ज हो गया समुद्र में। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड, सुनामी एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर इज सुनामी। इसको, ये जापानीज वर्ड है सुनामी, इसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। क्यों इसका नाम है हार्बर वेव्स, क्योंकि इसकी सुनामी आने की वजह से हार्बर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. The wave was result of earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. 26 दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई थी इंडिया में, यह आपका सदर्न एशिया में जो आई थी सुनामी, उसका रीज़न क्या था, अर्थक्वेक। और उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ पे था, at the western boundary of Sumatra, epicenter close to the western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. इसका रीज़न क्या था उस सुनामी का, रीज़न उसका ये था कि जो इंडियन प्लेट थी, ओके, इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, इन दोनों के बीच में फॉल्ट है, तो इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। इंडियन प्लेट क्या हुई, बर्मा प्लेट के नीचे घुसने लगी, एंड देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। इसकी वजह से क्या हुआ, सी फ्लोर का सडन मूवमेंट हुआ। अब वो जब नीचे घुसेगी तो ऊपर का पानी जो है वो उसका लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा और वो नीचे चला जाएगा लेवल। उस लेवल को भरने के लिए पूरे किनारों से पानी रश करेगा वहाँ पे, ओके, और जैसे ही वो रश करके उसको फिलअप कर देगा, देन वापस पानी फिर से लौटेगा वापस, और इसी की वजह से सुनामी वेव्स आई थी। द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाई 10 to 20 मीटर एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ओशन फ्लोर क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो गया बर्मा प्लेट के नीचे। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल इन द गैप दैट वॉज क्रिएटेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और बहुत सारा पानी किनारों से रश किया उस गैप को फिलअप करने के लिए, जो गैप क्रिएट हो गया था डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जब आपकी प्लेट नीचे डिस्प्लेस हो गई। दिस मार्क्ड विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। दिस मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ वाटर मासेस फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मासेस इन द सदर्न एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, पानी चारों तरफ रश करके वहाँ पहुँचा। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक्ड टूवर्ड द कोस्ट लाइन। जब एक बार इस पूरे पानी ने थ्रस्टिंग एक्शन किया इंडियन प्लेट को, ठीक है, बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। उसके बाद फिर ये पूरा वाटर मास पीछे की तरफ लौटा, और जब पीछे की तरफ लौटा तो ये बड़ी लहर के रूप में लौटा। ओके, सो सी इन द ब्रीफ द सुनामी ऑफ 2004।
26 December 2004, as the waves moves from the earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the wave length decreases with decreasing depth of the water. इन वेव्स का क्या होता है, वेव लेंथ डिक्रीज कर जाती है जब आपका वाटर का डेप्थ डिक्रीज होता है. द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 700 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर्स पर आवर. सुनामी वेव्स ट्रेवल अप टू डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर. Okay. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami, such as early warning system are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Early warning system आपके पैसिफिक ओशन में लगाए गए हैं, जो 3 घंटे पहले जानकारी देते हैं कि सुनामी आने वाली है. किस बेस पे जानकारी देते हैं, वो वहाँ का जो आपकी सेस्मिक एक्टिविटी उनको रिकॉर्ड करते रहते हैं. सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशन एज सेस्मिक एक्टिविटी इज लेस कंपेयर्ड टू द पैसिफिक. इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपका. सुनामी आर रेयर इन द इंडियन ओशन, वाई? एज द सेस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द पैसिफिक ओशन. द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन. सुनामी आने वाली, इसका सबसे पहला इंडिकेशन क्या होगा कि कोस्टल एरिया से पानी बिल्कुल आपका विड्रॉ हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा. फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स. एक बार पानी नीचे चलेगा, वापस जब लौटेगा तब सुनामी की लहर के रूप में लौटेगा. व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द ग्राउंड, दे स्टार्टेड असेंबलिंग टू एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल. अब ये पानी रश होकर वापस समुद्र के नीचे अंदर जाने लगता है, तो लोग इसको देखने के लिए किनारों पे इकट्ठा हो जाते हैं, और इनको ये नहीं पता कि अब सुनामी आने वाली है. ओके. द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive waves. पहला इंडिकेशन क्या बताया हमने, सुनामी आने वाली है, कि आपका जो रैपिड विड्रॉल होगा पानी का, कहाँ से, कोस्टल एरिया से, पानी बिल्कुल नीचे समुद्र की तरफ चला जाएगा. नाउ टाइड्स. द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड. व्हाट इज टाइड? रिदमिक राइज एंड फॉल, मतलब एक रिदम के रूप में ओशन वाटर का उठना और फिर गिरना, इसी को हम कहते हैं टाइड. Rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. High tide किसको कहते हैं? जब आपका जो ocean water है वो अपने highest level तक पहुंच जाता है. Water cover much of the shore by rising to its highest level. मतलब शोर पर किनारों पर सबसे highest level पहुंचता है, उस टाइम उसको कहते हैं high tide. What is low tide? When the water falls to its lowest level and recedes from the shore. जब पानी अपने बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर आता है और किनारों से बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाता है, उसको कहते हैं हम लो टाइड. ये दिन में 2 बार होता है अक्सर, ट्वाइस अ डे. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस कॉजेज द टाइड. ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा. वॉट इज द रीजन ऑफ टाइड? स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून. जो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट किया जाता है अर्थ के ऊपर, वही है टाइड्स का कारण. ओके. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉजेस हाई टाइड. हाई टाइड का रीजन क्या है? ओके. द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मून ग्रेविटेशनल फोर्स. जो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, मून की तरफ जो पृथ्वी का जो हिस्सा होगा उस तरफ क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून, जो अर्थ का जो पानी है वो मून की तरफ मूव हो जाएगा. ठीक है, इलिप्टिकल शेप में, और उसकी वजह से हाई टाइड आती है. ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन and the tides are highest. These tides are called spring tides. Okay, spring tides क्या होती हैं हम देखते हैं. During the full moon and new moon, full moon और new moon के दिन सिर्फ, the sun, the moon and the earth, ये तीनों एक लाइन में होते हैं, are in the same line and the tides are highest. जब सेम लाइन में होगा तो क्या होगा? See, this is sun, this is moon and this is earth. जब ये सेम लाइन में होंगे तो सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसको? अर्थ के वाटर को. मून भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसको? अर्थ के वाटर को. तो इधर का पानी पूरा
पृथ्वी का अट्रैक्ट होकर इस साइड में आएगा, तो यहाँ पर हाई टाइड्स बनना शुरू हो जाएंगी इस साइड में। और इसको बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में भी हाई टाइड्स बनेंगी इस साइड में। तो एट ए टाइम अर्थ के दोनों तरफ हाई टाइड्स फॉर्म होंगी और इसके इस पोजीशन पे लो टाइड बनेगी परपेंडिकुलर पोजीशन पे। ओके, हियर इट इज लो टाइड, यहाँ पर हाई टाइड और इस साइड में भी हाई टाइड्स। ओके, वैसे ही अगर देखिए हियर इट इज सन, सन यहाँ पे है, अर्थ बीच में है, मून यहाँ पे है, उस टाइम फिर भी हाई टाइड बनेगी। कैसे? सन अपनी तरफ पानी को अट्रैक्ट करेगा अर्थ के, पानी इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, इधर मून है, इसका मून जबकि बहुत नज़दीक है, इसका ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो भी पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पानी यहाँ से हट के इस तरफ आना शुरू हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो पूरी इधर यहाँ पे हाई टाइड बनेगी और इस साइड में भी हाई टाइड, और परपेंडिकुलर पे यहाँ लो टाइड, यहाँ पे भी लो टाइड्स। ओके, व्हेन द मून इज इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इनटू डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन। जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होगा, मीन्स हियर। ओके, व्हेन द मून is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tide. These tides are called neap tides. जब see here, यहाँ पर सन है, ये आपका मून, सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अर्थ के पानी को और मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर लो टाइड्स फॉर्म होंगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि पानी डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। When the moon in its first and last quarter, the ocean water gets drawn diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting into low tide. These tides are called neap tides. Low tides को क्या कहते हैं हम? Neap tides. High tides help in navigation. See the importance of the tides. High tides help in navigation. They raises the water level close to the shore. This helps the ship to arrive at the harbor more easily. हाई टाइड क्या होती है? नेविगेशन में हेल्प करती है। कैसे? जब हाई टाइड आती है तो पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा उठ जाता है किनारों पर, इसकी वजह से बड़ी बड़ी शिप्स हार्बर में इजीली आ जाती हैं। द हाई टाइड ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग, ये फिशिंग में भी हेल्प करता है। कैसे? मैनी मोर फिशेज कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। इससे क्या होता है? ज़्यादातर मछलियाँ किनारों पर आ जाती हैं जब हाई टाइड आती है, तो अपने साथ वो लेके आती हैं, तो इससे दिस हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. कुछ जगहों पर ये आपका rise and fall of water को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ओके, now ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on ocean surface in definite direction. What are ocean currents? They are स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाली पानी की धारा को हम कहते हैं ओशन करंट्स। द ओशन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड, या तो गर्म हो सकती है या ठंडी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल। वार्म ओशन करंट कहाँ ओरिजिनेट करती है? इक्वेटर पे। क्यों? वहाँ पर सूर्य की गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए वार्म करंट वहीं ओरिजिनेट करती हैं। और कहाँ मूव करती हैं? पोल्स की तरफ। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। और कोल्ड करंट क्या करती है? कोल्डर एरिया या पोलर एरियाज में से पानी को ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड में लेके आती हैं। दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। लैब्राडोर कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट, द ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। ओशन करंट्स की वजह से होता क्या है? वाई इट इज यूजफुल? ओशन करंट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। जहाँ ये बहती है वहाँ के टेम्परेचर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है। वार्म करंट ब्रिंग्स अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर द लैंड सरफेस। वार्म करंट की वजह से क्या होता है? आपका टेम्परेचर उस एरिया का बढ़ जाता है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। जहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती हैं, वो सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं वर्ल्ड के। सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका आर बेस्ट एग्जाम्पल। जापान के किनारे और आपका नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे
जहाँ पे दो धाराएं मिलती हैं, जापान के किनारे क्यूरोशियो और ओयोशियो जलधारा मिलती है, और आपका नॉर्थ अमेरिका के पास ये गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर करंट मिलती हैं। दे आर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर, लेकिन जहाँ ये मिलती हैं दोनों धाराएं वहाँ पर फॉगी वेदर हो जाता है एंड डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, और नेविगेशन को हैम्पर करती हैं, डिफिकल्ट इन नेविगेशन। ओके, सी द करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट वी सी द currents of the Pacific Ocean. See, this is north equatorial current, okay, and this is south equatorial current, and in between this it counter equatorial current, okay. उसके बाद जब आपका ये यहाँ से आने के बाद और जब फिर ये नीचे जब आती हैं पोलर एरियाज में, here it is west wind drift, it is now here Humboldt current, इसको पीरू करंट भी कहते हैं। ये कोल्ड करंट है आपकी, ठंडी जलधारा, ओके। ऊपर हम देखते हैं यहाँ पे दिस इज अलास्का करंट, गर्म जलधारा, और ऊपर से आने वाली कैलिफोर्निया करंट ये ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया करंट कहाँ से, पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ मूव करती है। नाउ इन द सी हियर इन द अटलांटिक ओशन दिस इज लेब्राडोर करंट, कोल्ड लेब्राडोर, ये पोल्स की तरफ से आ रही है तो ये लेब्राडोर कोल्ड करंट है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ इक्वेटर से निकली और इसके बाद ये गल्फ की खाड़ी में घुसी और यहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास ये निकली और गल्फ स्ट्रीम के रूप में देनी ऊपर गई। इट इज़ इन द नेम ऑफ गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जब और नॉर्थ में चली जाती है इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है इधर। फिर जब ऊपर से पोल की तरफ से नीचे आ रही है तो ये आती है एज ए कोल्ड कैनारी करंट। सी हियर इट इज़ कोल्ड कैनारी करंट। सेम इन द सदर्न अटलांटिक ओशन, हियर इट इज़ साउथ इक्वेटोरियल करंट, एंड इन बिटवीन साउथ इक्वेटोरियल एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहती है, बिल्कुल वो इक्वेटर के आसपास बहती है, वो अपोजिट डायरेक्शन में इनके। इट इज ब्राज़ीलियन करंट एंड ब्राज़ीलियन करंट इसके बाद ये नीचे पहुंचती है तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलने के बाद ये ठंडी जलधारा बनती है और बेंगुला करंट के रूप में अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से ऊपर मूव करती है। देखिए दिस इज बेंगुला करंट। हियर इट इज फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट भी ठंडी जलधारा है, ओके। बेंगुला करंट ठंडी जलधारा। नाउ इंडियन ओशन में आप देखेंगे दिस इज साउथ इक्वेटोरियल करंट, ओके। दिस इज व्हाट, अगुलहास करंट, नियर केप अगुलहास, इट इज अगुलहास करंट। उसके बाद ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के से मिलने के बाद फिर ये आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में कोल्ड करंट जो है इसके रूप में ऊपर आती है। एंड हियर इट इज काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ओके। एंड ये आपके देखिए मानसून करंट है, ये मानसून विंड्स हैं यहाँ पे। हियर इट इज मानसून विंड्स। हियर इन द पैसिफिक ओशन दिस इज कोल्ड ओयोशियो करंट। ये कहाँ से आती है, बियरिंग स्टेट्स, ये आपका आर्टिक ओशंस के बियरिंग स्टेट के होते हुए अंदर घुसती है नीचे की तरफ पैसिफिक ओशन में, और ये ओयोशियो करंट के रूप में आती है जो कि ठंडी जलधारा है। एंड दिस इज क्यूरोशियो करंट। और क्यूरोशियो और ओयोशियो जापान कोस्ट में मिलती हैं तो वहाँ पर ये बेटर फिशिंग ग्राउंड क्रिएट करती हैं, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, जय हिंद।